ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੜਕਾਈਏ, ਇਹ ਭੜਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਹਿੰਸਾਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਖਾਣਗੇ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲੀਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫਾੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਜ ਹੈਗਾ ਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ? ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾ ਦੀ। ਤੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸੁਧਰ ਜਾ। जोश च कमी आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो और जोश चाहिए थे। जोश थे तो हरियाणा का जोश देख के आए आप 200 लोग दिल्ली वाले आए हैं, पूरा हरियाणा खड़ा हो गया। सोच रहे हिंदी और सिख भाईचारा खराब होगा, नहीं है। देखोगे अगर सिक्कू बॉर्डर ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। अरे हरियाणा वाले देख के ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਨੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ जोश बारे में दसांगा इधर ले मेरे। ये तो बीजेपी के आदमी थे जिन्हें देखो यार लाल किले पे बीजेपी वाला किया है। नेट बंद बदनाम करना चाहो मूवमेंट ਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੋਸ਼ ਸੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਟਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ अपील नहीं करेंगे, रिपील नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे ब्लैक क्लॉज, जब तक ये वापस कानून नहीं लेंगे ਅਸੀਂ अपने मेन मुद्दे तो हटन नहीं वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कानून उन्होंने वापस लेने ही पैणगे। चाहे कल जो एक्ट होया और 26 जनवरी ਨੂੰ ਹੋਇਆ, किसी चीज़ सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं कि उस मुद्दे पे चले जाए। ਅਸੀਂ उस चीज़ ਲਈ जस्टिफिकेशन देंदे रहिए कि वो सही कि गलत होया। ਅਸੀਂ जस्टिफिकेशन भटकान नहीं कर रहे हैं, वो मुद्दे तो ਇਹ भटकाना चाहते हैं कि ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਲੋਕ ਭਟਕ ਜਾਣ, जनता ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਗਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਉਹ ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ एक्चुअली, क्योंकि गोदी मीडिया दिखा रहा है जी ये देखो जी यहाँ तो किसान ही नहीं पली बत्तो, ये तो खालिस्तानी है और ये तो आतंकवादी है। आतंकवादी फिर उठा के क्यों नहीं लेके जाते? इन्हीं औकात है ना कि बैरीकेड में टप के दिखा देना। पर कोई एक गल दसेगा, अगर ये आतंकवादी आ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਪਿਛਲੇ 62 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਆ? ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਸਕਦਾ? और लंगर छका रहे हैं, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਸਕਦਾ? खा रहे मोदी मीडिया। आतंकवादी को 5 मिनट नहीं लगूगे, 5 मिनट इस तरह के आतंकवादी हो जो तो इसका पेट भरता तो कोई बोले इन पीयूष गोयल जो मिनिस्टर है रेलवे दे, उन्होंने लंगर खाया किसान, ठीक है, उन्होंने आतंकवादी कहा। नमस्ते ही सब भारतवर्ष के जितने भी किसान मजदूर हैं उनके लिए मैं पैरों में नमस्कार करता हूं। पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पर हमारे पास किसान इस संयुक्त भारत किसान में आंदोलन में शामिल हुए हैं, ये सभी ऐसे किसान हैं जो पूरा भारत के किसान को बचाना, मजदूर को, भारत देश को बचाना चाहता है।
मैं मोदी सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों ऐसा मोड़ पर हमारे पूरा भारतवर्ष के किसानों और मजदूरों को ला दिया है कि वो ना पीछे हट सकते हैं, और इसके लिए क्योंकि उसके पास खाना ही नहीं रहेगा, तो खाना नहीं रहेगा तो किसान मजदूर कैसे जिंदा रहेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ मोदी सरकार को, ये इतना अड़ियल रवैया आप क्यों दिखा रहे हो। जब से ये काले कानून 5 जून को 2020 को ये पार्लियामेंट में जब लाया गया, तब वहाँ पर जितने भी एमपी थे उन सभी को आपने पहले एब्सेंट कर दिया, वहाँ से निकाल दिया गया। तब भी एक हमारे पंजाब के जो बहुत बुजुर्ग एमपी थे, उनको आपने जब उन्होंने आपके विपक्ष लिया तब भी आपने उनका माइक म्यूट कर दिया गया। तब भी हम सभी किसानों को पता लग गया कि आप कुछ न कुछ दाल में काला करके आप ये काले कानून हम पर थोपना चाहते हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मोदी सरकार को, जो अमित शाह आरएसएस जो इनके पैसे ऊपर कौन लगाता है, ये अंबानी अडानी कॉरपोरेट घराने के लोग हैं जो इनको और आगे एक नेता के रूप में, पर असलियत में मोदी एक पहलू है इन अंबानी अडानी आरएसएस के आगे के, इसके पीछे वही लोग इसको संचालन कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जब से ये किसान आंदोलन चढ़ा है, आप लोगों ने हम सब पर तभी से इतना प्रेशर पाया है, इतना हर एक पहले आया था जब किसान आंदोलन सिंघू बॉर्डर पर, आपने शंभू बॉर्डर पर भी हमको रोका गया, वहाँ पर भी बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे सभी पर पानी के बुछारे चलाए गए, लाठी चार्ज किया गया किसानों के ऊपर। तब हम वहाँ पर से भी हम यहाँ पर बिल्कुल शांतिमयी सिंघू बॉर्डर पर आ गए। फिर भी आप लोगों ने अभी तक हमको किसानों को आपने क्या क्या साबित करने की कोशिश की, पहले खालिस्तानी फिर आतंकवादी, ये सब के बावजूद भी आप लोगों ने पहले कहा जो फंडिंग कहाँ से आती है। तो मैं आपसे, मोदी सरकार फंडिंग की बात आपने की है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब चुनाव आता है तो चुनाव में आप बड़े बड़े जहाज, कार, मोटरसाइकिल, ऐसे जो आप जब चुनाव में आता है तो दारू बांटते हो, पैसे देते हो, और ट्रैक्टर में तेल पवाने के लिए देते हो, रैली के लिए। आप ये मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये सब पैसे आ रहे हैं, इसकी फंडिंग आप कहाँ से लेते हो? मैं इस चीज़ का जवाब भी जानूंगा, लेकिन मैं बताने जाता हूँ, इसका पहले उत्तर मैं बता रहा हूँ। ये सब फंडिंग आरएसएस, अमित शाह और अडानी अंबानी के लोग इनको देते हैं ये फंडिंग के लिए। लेकिन हम किसानों पर आपने ये आरोप लगाया है, लेकिन इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये हमारे गुरु नानक पातशाह जो हुए पहले गुरु, उन्होंने हमको दात में बख्शी है लंगर की प्रथा। तब से हम आज तक 550 साल से एक बार भी रुकी नहीं है, तब से चल रही है। अरे हम तो किसान हैं, हम ही तो ऐसे हैं जो खेत में खलिहानों में अनाज उपजाते हैं और पूरा देश विदेश को खिलाते हैं। तो आप कैसे कह लिया? मैं ये पूछना चाहता हूँ अमित शाह और अंबानी अडानी से जो चलते हैं इनके बीजेपी सरकार ने पिछले बार ही ईवीएम मशीन को बिहार में इन्होंने हैक करके जो उन्होंने घिनौना चुनाव जीता है, इसके लिए मैं हैकिंग का जिम्मेवार सिर्फ अमित शाह को देना हूँ, क्योंकि यही सब ये टेक्नोलॉजी लाकर हैकिंग करता है। और आपने ये बोला है ना कि अमित शाह जो ये काले कानून हमारे लिए ठीक है, आप ये बताओ, जो काले कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी वॉलमार्ट कंपनी है एक अमेरिका में, जिन्होंने ये पहले ही यहाँ पर इतने बड़े विकसित देश में फेल हो चुका है, तो आप हमारे विकासशील कर रहे हैं भारत में, आप कैसे ये करना लागू चाहते हो? आपको अगर इतना ही आपको अगर देखना है ना, तो बिहार में 2005 में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नाम के बिल पास सबसे पहले बिहार में हुआ था। आज वहाँ की कंडीशन रिजल्ट देखिए, जो 15-15, 20-20 बीघे के जो मालिक हैं वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में आकर काम करते हैं, मजदूरी में वो कुचले गए हैं। आज तक उनको इतना दबाया गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उससे भी आपको नहीं दिखता है ना, तो हम किसानों को जितना काफिला है यहाँ तक 50-60 किलोमीटर तक एक रोड पर किसान है। आप कहते हो जो हम ही सही है, अरे तो 50-60 किलोमीटर तक जो गाड़ियाँ लगी है वो गलत है क्या? अगर मैं बताना चाहता हूँ मोदी सरकार को, अगर यहाँ पर आपने हमारे बीच में आ गए और एक 5 साल के बच्चा को भी अगर आप ये काले कानून के बारे में अगर पूछोगे ना, तो आपसे बेहतरीन उत्तर देगा, क्योंकि उन लोगों के पास इससे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा नॉलेज है उन सब के पास। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ये अमित शाह, अंबानी, अडानी
ये हर वक्त हम पर नज़र रखते हैं और हमारे जो किसान आंदोलन को टारपीडो करने के लिए यहाँ पर अपने गुंडे पाले हुए यहाँ पर 26 जनवरी को जो भी दुर्घटना हुई है, मैं ये बताना चाहता हूँ इसके मेन कारण अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी, अंबानी, अडानी है। यही ये सब कुछ घटना की अंजाम में आगे रहते हैं। और जो अब भी देखिए हमारे सिंघू बॉर्डर पर रोज़ की रोज़ हमला करवाते हैं ये गुंडे पाले हुए हैं अमित शाह और बीजेपी के लोग, जो हमारे किसानों के ऊपर ये नाजायज लाठी चार्ज करते हैं, पेट्रोल बम के गोले फेंकते हैं, आंसू गैस के गोले फेंकते हैं। क्या ये हिंसक नहीं है? ये पुलिस के गैस के गोले आप बताओ, हम आम जनता तो नहीं रखते ना, ये पुलिस के साथ मिलकर आरएसएस के भेष में, ये पुलिस में भेष में आकर हम पर वार करते हैं। ये भी आप हिंसा ही कर रहे हो, आप कानून के मर्यादा भूल गए हो। यहाँ पर हम शांतिमय पहले थे, हैं और रहेंगे। किसानों को ऊपर आप ज़बरदस्ती जुल्म नहीं करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ ये काले कानून जब से आपने बनाई है, यहाँ पर देखिए हर एक बच्चा को यहाँ तक पता चल गया है कि ये काले कानून हर एक इंसान को मारू कर देगा। ये स्टोर कर रहे हो जितने अपने फसल, ये सब पहले भी हो चुका है, 1955 से भी पहले ये सब का रिजल्ट बिल्कुल नेगेटिव आया है। तो इस बारे में कैसे आपका ख्याल है? आप जल्दी से जल्दी काले कानून यहाँ पर रद्द कीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी सुख शांति हम यहाँ से बॉर्डरों पर से जो किसान अपने घरों में अपने बच्चों के पास पहुँच जाएं।